गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। किछ रूप नहीं किछ जात नाही किछ ढंग ना मेरा क्या मूलै बोलै गुण बिहूण नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे हम पापी संग गुर उबरे पुन सत गुर केरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹ ਖਟੀਏ। ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਸਭ ਆਪੇ ਸੱਚਿਆਰ, ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚਿਆਰ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵੋ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਖਲਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੇ ਸਿੱਧ ਜਨੋ, ਹੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥਾਪਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਪ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਣੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮਾਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਹਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਣੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਇਸ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦੇਖੋ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ, ਉਸ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਮਾਲਣੀ, ਉਸ ਮਾਲਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹਰ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 25% ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਣੀ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਮਾਲਣੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ। ਹਰ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਲਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਓ। ਅਰੇ ਮਾਲਣੀ, ਤੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਐਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਵਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਅਰੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਰੇ, ਇੱਕ ਸੁੰਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਜਿੰਦ ਨੂੰ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਤੀ ਬਿਸ਼ਨ ਡਾਰੀ ਫੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹ! ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਲੀਆਂ। ਤੀਨ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋਰੈ, ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਗਈ, ਤੂੰ ਪੱਤੀ, ਡਾਲੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਸਭ ਤੋੜ ਲਏ,
तू ये तीनों देवतियां नूं ते तू तोड़ के जिंदियां नूं तो तोड़ आई, करें किस की सेवा, किहदी सेवा करन वास्ते कर रही है तू उस पत्थर दे अगे चढ़ाने वास्ते कह रही है। ते अगों कबीर साहब बड़ा सुंदर सानू समझाते ने, पाखान गढ़ के मूरत कीनी दे के छाती पाओ। कहते ने उस मूर्ति नूं तू चढ़ा रही है, मूर्ति नूं बनाया किन्ने? मूर्ति ने कोई मूर्तिकार ने बनाया है। देखो, और रब कोई बना सकता है? जिस रब ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ, एक बंदे ने पत्थर लिया, पता नहीं किन्नियां विठा पईयां होणियां ने, किन्ना गंद उहदे उत्ते पिया होना है, किन्ने पक्षी आके बैठे होने ने, किन्ना मैला पत्थर होना है। उन्हें वो पत्थर लिया, पाखान गढ़ के उस पत्थर नूं कढ़ के ते उहदी मूरत सवारन लग पिया। और सब तो वड्डी गल, मूर्तिकार की कर रहा, देख के छाती पाओ, उहदी छाती ते पैर रख के ना उस मूर्ति की घाड़त कर रहे हैं। असी कह रहे हैं रब बना रहे हैं। रब कोई बंदे दा बनाया नहीं है, बंदा नूं रब बना रहा है। और उस भोले मनुख ने की किया, भैड़ा जिहा पत्थर लैके उन्होंने साफ सूफ करके, पता नहीं किन्ने समय दी उहदे उत्ते मैल बिठा पईयां सन, गंद पिया सी, उन्हें लैके थोड़ी छैनी लैके उस पत्थर नूं उहदे उत्ते छाती ते पैर रख दिते ते मूर्ति की घाड़त भई रब बन रहा है। साध संगत, रब ते रूप ना रेख ना रंग ना किछ, त्रह गुण ते प्रभ पीन, चक्कर चिन्ह बरन जात और पात नैन जय, रूप रंग रेख पे को कह न सकत क्या। कोई रब की कोई शक्ल थोड़ी है, रब कोई मूरत किसी की बनाई हुई कोई काल्पनिक चीज़ थोड़ी है। जेड़ा उठदा है अपनी सोच दे नाल उहदा मूँह बना दिंदा है, उहदी छाती ते पैर रख के, दसो इस तरह रब बनते ने? फिर मैं उही देखिया, उन्हां दी पूजा करते हैं, फिर उन्होंने जल दे विच सुटदे ने, फिर वो जल तो बाद कित्थे फिर कूड़ियां दे विच उही तस्वीरां फोटोआं पईयां हुंदियां ने, मूर्तियां पईयां ने। कबीर साहब कहते ने, पाखान गढ़ के मूरत कीनी दे के छाती पाओ, उहदी छाती ते रख के उहदी घाड़त कढ़ रहा कि रब बन रहा है। जे ये मूरत सच्ची है, जिहड़ी उहने मूरत बनाई है, जे वो सच्ची है तो गड़नहार खाड़े खाओ। जे सच्ची मूरत उन्हें बनाई होंदी ते जिन्हों जिहड़ी रूप उन्हें बनाया ते वो ते इन्हें खा जाना सी। भाई तू मैनू बनाने वास्ते मेरी छाती ते पैर रख के मैनू थोड़ियां पे मारना है, मैनू छैनियां मारदा पिया है। जे उहदे च जिंद होंदी ते वो मूर्ति उठ के सीधा मूर्तिकार नूं फड़ के मार दी। भाई तू की मूर्ति बनाई है, तू मेरे उत्ते छाती ते पैर रख के मैनू ही तू बना रहे हैं। नहीं नहीं, थापिया ना जाए कीता ना होए, असी रब नूं नहीं बना सकते। ये तो साडी अलभग जीव हाँ, असी सानू नहीं समझे। असी बैठ के घरां विच मूर्तियां बना के, मैं तो सिखां दियां भी दुकानां ते देखना गुरु नानक देव जी की मूर्ति, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की, पता नहीं किन्ने किन्ने देवी देवतियां दी, फिर उठ के उन्हां नूं की करदे ने, मुख ते प्रसाद लगांदे ने। गुरु मूरत नहीं है, गुर मूरत गुर शब्द है। अगे चल के कहते ने, पात पहित अर लापसी कर करा का सार। मैं संखेप विच कह दा, जदों मूर्ति स्थापित हो जाती है ना, तो पंडित जी अपनी दुकान चलाने वास्ते की करते हैं? भगत कबीर जी देखो बड़े क्रांतिकारी भगत होए ने। उन्होंने सच की गल कहने नूं, हालांकि उन्होंने बड़ा विरोध होया, उन्होंने मारन का भी यतन किया, लेकिन कबीर जी ने सच बोलन वास्ते कभी भी पिछे नहीं हटे। तां ही उन्होंने श्रोमणी भगत कहा जाता है। क्रांतिकारी बचन उन्होंने ने कि उस वेले सनातन धर्म का बहुत बोलबाला तो खैर अज भी है, पर उस वेले इतना सी कि अंधविश्वास इतना सी, कर्म कांड इतने सन। भगत कबीर जी ने अपने बोलों नूं गुरु दे उस परमात्मा की सच नूं कहण नूं कोई उन्होंने रोक नहीं सकिया। ते वो की करते सन, पत्त लैके, दाल लैके, कड़ा लैके, पंजीरी लैके ना, सारियां कट्ठियां लोगों को कह के ना बई असीं मूर्ति नूं चढ़ानियां ने। एवें करी दे ना, पंडित जी नूं जाके देईदा या मूर्ति नूं चढ़ा दो। एक जिहदे च जिंद ही नहीं है, उहनूं की चढ़ाना है? तो भगत कबीर जी कहते हैं, भोगन हारे भोगिया जिस मूरत के मुख छार। जिन्हें खाना सी वो तो खा गया, खादा किन्ने? खादा ब्राह्मण ने, पंडित ने, ते ओहदे मुख दे उत्ते छार ला दित्ती।
ਛਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾ। देखो वो ला ला के ना मूर्ति के उत्ते चिकनाहट वाली चीज़ां मिठाइयाँ, तो मूर्ति की होंदी है, मूर्ति चिकनाहट आ जाती है। तो फिर पंडित लोग की करते हैं, स्वाह लैके ना वो सारी वो मूर्ति ते लगाते हैं ताकि ये चिकनाहट हट जाए। कहते हैं मूर्ति वास्ते तो स्वाह मिल रही है, तो आप 36 प्रकार के भोजन जेड़े मूर्ति नूं चढ़ाने वास्ते कहे ने वो आप खांदे पे ने। ते अगीन विच कहते हैं मालनी भूली जग भुलाना। हे मालनी, हे पत्ते तोड़न वाली, हे फुल तोड़न वाली, तू भुली हुई है। तू की भुली है? जग ही भुलिया होया है, हम भुलाने ना है। भगत कबीर जी कहते मैं नहीं भुलिया, मैं सब देख रहा वां। एक किवें मूर्ति बनी, किस तरह ओदी छाती ते पैर रख के किन्नी ओदी नरादरी करके तुसी रब दा रूप बना दिता। पहली गल तो रूप दा है ही नहीं है, ये असी कोई शरीर है ही नहीं। जे शरीर मैं कई बार एक सकना ना वो मरे ना होवे सोग, जे कोई सोग तो तां करिए जो जींदा होए या मरेगा, वो जन्म मरण तो है ही नहीं परमात्मा। ते कबीर साहब कहते मालनी भुली जग भुलाना। सारे भुले बैठे ने, हम भुलाने ना है। मैं नहीं मनदा मूर्ति नूं, क्यों को कबीर हम राम राखे। मनु तो उस राम ने रख लिया, वाहिगुरु ने रख लिया। कृपा कर हर राय, हुण तू मेरे ते कृपा कर कि मनु इस गल दा ज्ञान हो जाए कि रब नूं कोई थाप नहीं सकदा। रब मूर्तियां विच, तस्वीरां विच या किथे किसे जूना दे विच रब नहीं जे। असी अजूनी समझ के आए हैं ना, रब अजूनी नहीं है। रब नोट कर लो, रब अजूनी नहीं है। असी जूना विच आ, रब अजूनी है वाहिगुरु। क्यों? क्योंकि वह जूना तो रहता है। तो महाराज इत्थे यही कह रहे ने थापिया न जाए, उन्होंने कोई थाप नहीं सकता। कोई जिस तरह कोई मंदिर विच जगन्नाथ विच वो आरती कर रहे सन, कहते महाराज खड़े हो गए गुरु नानक पातशाह, कहते की कर रहे हो? कहते ने आरती तुसी भी करो। कहते मैं एक छोटे जे थाल ते 6-7 दिए रख के उस इन्ने विशाल परमात्मा दी मैं किवें आरती कर सकना? महाराज कहते उसकी आरती तो सारा आकाश कर रहे है, तारे कर रहे ने। गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तार का मंडल जनक मोती धूप मना लो, पवन चवरो करे। ओदी चोर ते सारी हवा सारी उसनू चोर कर रही है। एक 4 दीवे 7 दीवे परमात्मा इतनी वड्डी शख्सियत नू ये छोटी जी थाली विच असी आरती नहीं कर सकते। ये समझाने दे ढंग ने, जेड़े समझ गए वो हट गए, जेड़े नहीं समझे वो अज भी कर रहे ने। तो पातशाह कह रहे ने थापिया न जाए, वो थापिया नहीं जा सकता। कीता न होए, उन्होंने किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने आप तो पैदा। तू आपे ही आप है, आप कारण किया। तू आपे आप निरंकार है, कोवर न बिया। तू करन कारण समर्थ है, तू करे सो थिया। तू अन मंगिया दान देवना, सबना हाँ जिया। सब आखो सतगुरु वाहो वाहो, जिन दान नाम हर मुख दिया। जिन्हें सारा कुछ दिता है वो आप ही है, उन्होंने किसी ने नहीं बनाया। उन्होंने बनाने वास्ते किसी की सलाह नहीं, वो अपने आप तो प्रगट होया है। तो पातशाह कहते ने आपे आप निरंजन सोए। इत्थे नरिंजन नहीं पढ़ना, नन्ने नूं सियारी है। निरंजन सोए, वो परमात्मा अपने आप निरंजन। जे संधि विच्छेद करिए निर अंजन, अंजन होंदी है कालक सुरमा, जड़ियां भैणां लगांदे ने, काजल कह लो, अंजन कालक। कालक सुरमा हो गया, सुरमा कालक की है माया, ते माया मर गए निरंजन। कालक तो रहत, माया तो रहत। असी सब माया की चपेट विच हां। जिस परमात्मा ने माया बनाई है, आप निरंजन है, आप कालक तो रहता है, आप माया तो रहता है। तो महाराज कहते हैं आपे आप निरंजन सोए, वो परमात्मा अपने आप तो माया तो रहत है। तो अगे महाराज फिर की कहते हैं इनू पाया किवें जा सकता है, जो सवाल सी। तो महाराज ने कहा जिन सेविया तिन पाया मान। जिन्हां ने परमात्मा की सेवा की, गुरु की सेवा की, गुरु के बचनों की संभाल की,
जिन्हां ने गुरु के बचनां ते पहरा दिता, सेवा की, उन्होंने गुरु घर च मान मिले। अज मना रहे हैं ना गुरता दिवस, धन गुरु रामदास सच्चे पिता का। भाई लैणा जी आए सन ना गुरु नानक पातशाह को, 20-20 साल 25-25 साल तो गुरु साहब दे नाल सन। पर भाई लैणा जी नूं क्यों प्यार मिल गया पता है? क्योंकि उन्होंने गुरु घर की अंतक सेवा की, हुक्म मन्निया, झाड़ू की सेवा की। ते महाराज ने फिर कईयां ने कहा इन्ने समय तो जिहड़े तुहाडे नाल सन, ईवन तुहाडे साहिबजादे भी, तुसी गुरता गद्दी गुरु अंगद देव महाराज नूं दित्ती है। तो महाराज ने कहा जिन सेविया तिन पाया मान। गुरु अमरदास पातशाह ने 12 साल, क्योंकि आज गुरु का गुरता दिवस है, मैं क्या चलो विच पंक्ति आई है, 12 साल साध संगत, एक भी नागा नहीं। शरीर भी ढिला होया होएगा गुरु अमरदास पातशाह का, कई मुश्किलां भी आईयां होणगियां। मैं इतिहास जदों पढ़ना वा ना, मेरे रोमटे खड़े हो जाते हैं। असी 4 दिन गुरुद्वारे चले जाइए ना लगातार, तो 50 बंदियां नूं दस ना दईए ना, तो सानू वो गया हजम नहीं होंदा। 12 साल गागर ढोई है, 62 साल की उम्र। गुरमुख बुढ़े कदे नाही, जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान। और मैं इतिहास पढ़ रहा सी, किसी इतिहासकार लिख रहे सन 11:30 बजे रात नूं महाराज आराम ही जाते सन 1 घंटे वास्ते, 12:30 उठ जाना, क्योंकि सानू महापुरुष दसदे सन 12:30 तो बाहर ही उठे करन जे दुनियावी लोग ने, क्योंकि ये समा ना गुरु नानक दा है उठन दा 12 बजे तो बाद दा। उस तो बाद फिर महापुरुष उठते ने, संत जपण वाले 12:30 बजे 2 बजे, फिर दुनियावी जड़े 3-4 बजे, फिर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने किरत है, ये वड्डा विषय है, चलो इनू लग। 11:30 बजे पता की करते सन? रोड़ियां ते आराम करते सन गुरु अमरदास पातशाह, कित्थे पक्की नींद ना पै जाए। असी मखमल दे गद्दियां ते AC लगा के ते इस तरह सुते होने, गाफल दी निंदर। कबीर सुता क्या करे, उठ के ना जपे मुरार। एक दिन सोवन होएंगो लांबे गोड़ पसार। सुता रहा AC दे अंदर, फिर जदों मौत आनी आ ते लंबे गोडे पसार के फिर सुता ही रही उत्ते, ते फिर तेन कबर च सुआ ही देना उन्होंने। 11:30 बजे आराम च जाना ते रोड़ियां ते सोना। आराम वाहिगुरू सोना नहीं, गुरु नूं कदी ना को सोना है, गुरु सो गया तो परलो आ जाएगी। गुरु आराम, कई वर्ड ने, गुरु कदी ना क्या गुरु नानक सुते पे सन, नहीं। जिस दिन गुरु नानक सो गए उस दिन ते संसारी परलो आ जानी है। सतगुरु जागता है, वो तो सदा ही जागता पे है। हाँ आराम ही चाह रहे हैं। 11:30 बजे आराम च गए, रोड़ियां ते सुते, कित्थे आराम कि वाहिगुरू आराम किया। घंटे दी उस नींद दे विच उठ जाना, कि ब्यासा जाना है 5 मील दूर, खडूर साहब तो ब्यासा। गागर लैनी ते जाना किवें, पुठे होके। जे मैं सीधा गया तो मेरी पिठ गुरु वाल हो जानी है। असी तो कितनी बारी पिठ कर चुके हैं। सानू कोई कहे ना अमृत छक लो, तो असी किन्नी पिठी दिखाने वाली गल है ना, बई गुरु की गल नहीं असी मन रहे। पर गुरु अमरदास पातशाह पुठे होके जाना, हनेरे विच, उस टाइम कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं होंदी सन। 5 मील ते जाके गागर भर के लियानी, फिर सीधा आना कि मेरी पिठ गुरु अंगद देव पास ना होए। 12 साल कित्थे जताया नहीं। असी 20 दिन 25 दिन 40 दिन चले जाइए ना, तो गल कोई भी कित्थे हो रही होवे, असी कह दें कि अज लेट हो गए सी, मैं गुरुद्वारे मैनू काम से, ऐदा मतलब शो कर रहे सी गुरुद्वारे जाने। नहीं भाई, अगों समा आया, भाई जेठा जी ध्यान नाल सुनना,
मन की बिरती एकागर करो। एक बारी प्यार नाल आखो धन गुरु रामदास जी, फिर आखो धन गुरु रामदास जी। 2 वजे का टाइम हुण भावना बनानी जे। अज गुरपुरब है ना, 2 वजे जेठा छोटी उम्र दे ते सामने एक कोई बिरध बाबा आ रहा, बड़ा बजुर्ग, चिट्टा दाड़ा, चिट्टी दस्तार, चिट्टे वस्त्र पाए हुए। भेंट हो गई राती 2 वजे भाई जेठे जी दे नाल। मिले, किधर जा रहे हैं? बाबा पूछदा है। जेठा जी कहते बाबा जी तुसी कित्थे जा रहे हो? देखो सवाल जवाब हो रहे हैं। अमृत वेला है। बाबा पता कौन सन? गुरु अमरदास पातशाह। किनू लभ रहे हैं? बाबा अमरदास जी कहते हैं जेठिया किनू लभ रहे हैं? अगों प्यार कहता है बाबा जी तुसी 2 वजे किनू लभ रहे हो? ये प्यार की खेड है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ सवेरे उठते हो ना, इवें ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ गुरु नाल ਹੁੰਦੀਆਂ ने। ये विचार हो रही ने। हार के गुरु अमरदास पातशाह पता की कहते हैं, जेठिया मैं तेरे वर्गे गुरमुखा नूं लभण वास्ते निकलिया। ते भाई जेठा पता की करता है, दोनों चरण फड़ ले ते रोन लग पिया। बाबा अमरदास जी कहते ने जेठिया की कर रहे हैं? मैं तो इन्ना ही किया, मैं तेरे वर्गे गुरमुखा नूं लभ रहा। मारे कहते मैनू मैं छड्डना ना, मैं तुहाडे चरण नहीं छड्डने। समझ आ गई ना गुरु दी। जिन्हें गुरु विचों रब देख लिया ना, वो नहीं छड्डेगा। छड्ड मेरे चरण नहीं, की चाहना है तू? देखो हुण जिहड़ी दात गुरु रामदास पातशाह जो भाई जेठे के रूप में मंगी है, सानू कोई कहे ना गुरु त्रुठे दे की चाहिए, साडा ध्यान आएगा कि वड्डी जी कोठी हो जाए, 2-4 कारां हो जान, बहुत माया दे दे। ये अमृत वेले गुरु साहब ना पुछदे जे सिंघां कोलों, ते पता की मंगया? महाराज सेवा तो कर रहे हैं, ऐसा रंग चढ़ा दो मेरे ते, मैं रंग चढ़ान आया तुहाडे कोल। काया रंगण जे थिए प्यारे पाइए नाउ मजीठ, रंगण वाला जे रंगे साहिब ऐसा रंग न डीठ। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास। कंत रब, रब उन्हां कोल है। धूड़ तिना की जे मिले जी को नानक की अरदास। आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक, कामण कंते भावे आपे ही रावे। जे तुठे हो ना, ये रंग चढ़ा दो मेरे ते महाराज ने गलवकड़ी ले लिया। जेठिया की करना उठ के सवेरे? महाराज तुसी पूछ रहे हो की करना उठ के? मैं टोकरी ढोना सवेरे उठ के, फिर महाराज मैं सो जाना वा। जेठिया कल तो तू सोना नहीं है। ये बाबा जी कह रहे हैं की करा मैं? तू जेड़े राती संगत सारा दिन टोकरी ढोंदी है ना, तू उस टोकरी ढोंदियां वालियां दी जेड़े सुत्ते पिन ना, मुट्ठी चापी करया कर। ये सेवा निभाल है। जिन सेवया तिन पाया मान। फिर जदों समा होए ना, ते संगतां दे जूठे भांडे मांज दिया कर। बचन संभाल लिया, लग पे ऐसी बख्शिश हुई। फिर पता कितनी बख्शिश हुई?
बैठा सोडी पातशाह रामदास सत गुरु कहावै। पूरन ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावे। ऐसे गुरु रामदास पातशाह जिहड़े अनाथ सन, जिन्हां दा अपना घर नहीं सी। मैं समझना वर्ल्ड दे विच गुरु रामदास जी वर्गा घर गुरु अमरदास ने कहा ऐसा घर होएगा तेरा जिथों लोकी अपने घरां दी मंग तेरे घर आके करनगे। तू अनाथ कित्थों दा है? तू जिहड़ी सेवा कीती है, तू किन्ने दिन भुखा भी रहे हैं, लोगों के शरीकियां दे ताने भी सुने नहीं। एक गल याद रख ली, तेरे दर ते आके कोई भुखा नहीं जाएगा। और इन्नियां बख्शिशां हुईयां कि अज गुरसिखां दे जे आनंद कारज भी बिना गुरु रामदास जी की बाणी पढ़े तो बिना आनंद कारज भी नहीं होंदे। मनु खिमा कर देना, कई बारी बंदा कहता ना बिना आनंद कारज तो विआह नहीं हो सकता। सूई महला चौथा पैलड़ी ला, एक किदे गुरु रामदास जी की बाणी तो बिना बंदे दी ग्रस्त जीवन भी आरंभ नहीं हो सकता। जे जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावीए गुणी निधान। ये पातशाह कहते ने, हे गावो उस गुणा दे खजाने नूं, गावीए सुनिए मन रखिए भाओ। हाँ, गाण वक्त एक गल का ध्यान रखना है, गावीए गाना है, सुनना है, मन विच की करना है, भाओ प्रेम, प्रेम दे नाल, भजड़ नहीं, लुत्फ लैके आनंद लैके। जिस तरह नशई हुंदा ना, कितने तरीकों नाल नशा करता है और आनंद लैंदा, उहदा अपना आनंद है। मारे कहंदे ने तू रब दे नाम दा नशा इस तरह लै, भाव विच, प्रेम दे विच, फिर की होएगा? देखो नाल ही जवाब मिल जाता है। दुख पर हर सुख घर लै जाए। जदों गुरु कोल आने हैं ना, दुखां दियां पंडां हुंदियां ने साडे कोल। मारे कहंदे ने धर जा इत्थे ते सुख अपने घर लै जा, क्योंकि उहदे घर विच सब कुछ हैगा। किन्ने आंदे ने, किन्ने दोखी आंदे ने, हाय हाय करदे आंदे ने, पर कोई खाली नहीं जाता। तुझ बासों खाली कोई ना है, तेरे तो खाली कोई है ही नहीं। सब दियां तू रीझां पूरियां करना है। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई। गुरमुख जिदा मुख गुरु वाल है, खक्के नूं सिहारी है, गुरु दे द्वारा, व्याकरण संबंधित गुरु दे द्वारा। नादं आवाज, वॉइस, शब्द, ये मैनू गुरु द्वारा मिले है, और किसी को नहीं मिले। यह जिहड़ा शब्द असीं सरवण कर रहे हैं ना, ये गुरु तो मिले है। गुरमुख वेदं, वेदं ज्ञान कित्थों मिल रहा है? गुरु पासों। गुरमुख रिया समाई, मैं गुरु द्वारा ही उहदे विच समा गया हूँ, क्योंकि वो सब थाई व्यापक है। मारे कहते ने गुर ईश्वर, इत्थे रुक के, गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। लोगों का होएगा ईश्वर देवता, लोगों का होएगा गोरख, लोगों का पार्वती शिव जी की घरवाली, पर मेरे वास्ते ते गोरख ही गुरु है, ईश्वर मेरे वास्ते बर्मा ही गुरु है, भाव की पार्वती माई भी मेरे वास्ते ही गुरु है। मैं तो ये इन्हों मनते ने, पर मेरा गुरु यही है, मेरा होर कोई गुरु नहीं है। मेरे वास्ते ईश्वर, सारे जिन्ने देवते ने, मेरा गुरु ही सब कुछ है। भाव कि मैं किसी देवी देवते नहीं मनता, मेरा आस्था सिर्फ मेरी गुरु तो है। मैं इहदे विचों ही सब कुछ वेख लेना वा। जे हों जाना, इत्थे हो नहीं पढ़ना, हों, हों मीनस मैं। मारे कहते जे हों जाना, जे मैं परमात्मा वाले जान भी लिया, सपोज आखा ना ही, मैं आख नहीं सकता, कहना कथन ना जाई, मैं उस परमात्मा दा
कथन नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता, वर्ड्स विच मैं नहीं दस सकता। क्योंकि वो आंदा ना, सुन वड्डा आखे सब कोय, केवड़ वड्डा डीटा होए, कीमत पाए न किया जाए, कहने वाले तेरे रे समाए। कोई कहण दे काबिल रहिंदा ही नहीं है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही समा जाता है, क्योंकि वो बेअंत है। किसी बेअंतता नूं कोई बंदा होवे करोड़ापति, वो अपनी इनकम करे, ਉਹਦੀ एक आफ्टर ऑल वैल्यू निकलेगी ना, तो ਉਹਦੀ एक लिमिट हो जाएगी, भाई ये अरबपति है, बस गल खत्म। पर परमात्मा ते हर आप अमूलक है, मुल ना पाया जाए। वो परमात्मा का मुल ही नहीं है, वो असंख्य है, ਉਹਦੀ ਮੁੱਲ ही ਅਸੀਂ पा ही नहीं सकते। अमलो अमुल आख्या ना जाए, ਉਹਨੂੰ कह ही नहीं सकता, वो वर्ड्स विच कह ही नहीं सकता। जे कह दिता तो फिर पारला बनना असी पा लिया, नहीं। परमात्मा ते बेअंत है, जे हो जाना आखा नाई, कहना कथन ना जाई। अगों मार कहते ने, गुरा इत्थे रुको, जरूर पाठ करते हैं, कल तो पाठ आवे ना, तो इस गल पंक्ति का ध्यान रखना। असी गुरा एक दे नहीं पढ़ना, गुरा एक देह बुझाई। हे गुरु, मनु एक बूझ दे दे, मनु एक सोझी दे दे, मनु ज्ञान दे। देखो इत्थे इस गल नूं ध्यान देना, फिर मैं समाप्ति है, समा पूरा हो गया। इत्थे गुरु ने यह नहीं किया मनु दर्शन दे दे। देखो सिक्खी दे अंदर विशा पता की है, ज्ञान। गुरु ने इत्थे नहीं किया गुरा एक दे दर्शाई, मनु दर्शन दे दे, नहीं। गुरु साहब की कह रहे ने, गुरा हे गुरु एक देह बुझाई, मनु एक ऐसी सूझ दे दे। वो केड़ी? सबना को गुरु कोलो सी, गुरु की है, गुरु ज्ञान है, बस ये सोच लो। गुरु एक शब्द है, तो ज्ञान लैना सी गुरु कोलों। गुरु नूं ठीक है, असीं गुरु दे दर्शन करन जा रहे हैं, पर दर्शन करके की लैना उत्थे? उत्थे असीं ज्ञान लैना है। तो महाराज कहंदे ने, गुरा एक देह बुझाई, मनु एक ऐसी समझ दे दे। वो केड़ी? सबना जियां का एक दाता, कि वो परमात्मा सारे जियां दा इक्को ही दाता है। जिहड़ी एक ओंकार दी व्याख्या चल रही है, वो जिहड़ी एक दी गल शुरू तो कीती है ना, महाराज फिर समझा रहे ने, वो सारियां जियां दा, तुहाडा मेरा, जीव जंतु जिन्ने भी संसार विच वेख रहे हैं, ये मनु सोझी दे दे कि वो परमात्मा एक दाता है, दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, दिंदे टोट ना आवी, अगनत भरे भंडार। सबना जियां का एक दाता, बेनती की करनी है, सो मैं विसर ना जाई, मेरे हिरदे विचों एक कदी विसर ना जाए। इस करके ये मैं तेरे कोलों एक सोझी मंग रहा, बूझ मंग रहा, ज्ञान मंग रहा, ये मंग रहा परमात्मा, तू जे मेरे ते टुठे हो, मैनू एक सोझी ज्ञान दे दो। इत्थे दर्शन नहीं किया, इत्थे ज्ञान दे दो, मनु सोझी दे दो। वो केड़ी अपने धोल धर्म दया का पूछ संतो थाव रखिया जिनसू, जे को बुझे होवे सचियार। उत्थे सचियार बनने वास्ते बूझन की गल की है। उत्थे यह नहीं कि मैनू दर्शन दो, जे को बुझे, जे मैनू ज्ञान दो, जे को बुझे होवे सचियार, मैं सचियार हो जावां, मैनू बूझ दो। उत्थे दर्शन नहीं किया। तो मारे कोलो विवेक मंगया करो, ये ज्ञान मंगो कि गुरा एक दे बुझाई, मनु एक बूझ दे दे, एक सूझ दे दे, ज्ञान दे दे, एक नॉलेज दे दे। वो केड़ी? कि सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, तू मेरे तो विसरी ना। तो इस करके महाराज इस पौड़ी विच ये बख्शिश कर रहे हैं कि परमात्मा किसी का बनाया नहीं है, किसी का थापिया नहीं है, अपने आप तो पैदा होया है। और जितनी खलकत तुसी देख रहे हो वो परमात्मा वालों है। मेरे वास्ते जो ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश सारे मेरा ते गुरु ही सब कुछ है। तो मनु ये सोची दवो कि परमात्मा एक है, वो मेरे मन तो कदी ना विसरे। यह विचारां गुरु साहब ने जो सेवा लई है, धन्नवाद है गुरु ग्रंथ साहब महाराज का, गुरु रामदास पातशाह जी का, जिन्हां दा असीं दिहाड़ा मनाया है। सो मैं ज़्यादा गुरु रामदास पातशाह बारे नहीं असी जिक्र कर सके, समय की बंदिश सी। सो महाराज किरपा करन, जिवें जिवें समा होएगा तुहाडे दर्शन करांगे। तो अगली पौड़ी विच फिर महाराज
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਕਰੋ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਵੋ ਆਸੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।